नमस्कार मित्रों, भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 134वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को विदित है, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस है। आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं डॉक्टर उषा साहनी, जो मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में पिछले 1.5-2 दशक से अध्यापन कार्य कर रही हैं और स्वयं साहित्य की विभिन्न विधाओं में निरंतर सृजनरत है। आपकी 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और एक कथा संग्रह प्रकाशित हो चुका है और एक काव्य संग्रह शीघ्र प्रकाश्य है। शेक्सपियर आपका विशेषीकरण या विशेष अध्ययन का क्षेत्र रहा है और उसकी पुस्तक भी आपकी प्रकाशित हो चुकी है। मैं डॉक्टर उषा साहनी से, जो कम्युनिकेशन टुडे का एडिटोरियल बोर्ड में भी जुड़ी हुई है और हमारे इस वेबिनार सीरीज की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ शुरू करें। डॉक्टर उषा साहनी। माँ शारदे के श्री चरणों में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। कुंदेन्दु तुषार हार धब या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या श्वेत पद्मासना या श्वेत पद्मासना. A very warm welcome to one and all present here. Today we are here on this platform to get the knowledge on a topic which is the legacy of Major Dhyan Chand, lessons for modern athletes. And we are very happy to announce that this is the 134th webinar. We started a webinar series on 2nd of October 2020. And the major pillar behind that webinar series is Professor Sanjeev Bhanawat, who took all the efforts to begin this particular webinar series at such a juncture of time when everything was very chaotic. We all were suffering from the pandemic, but still he decided that why not sitting in our own houses, from the small screens we can get connected, and we should not, his idea was that we should not stay back and wait for the things to get okay, but then we should feel that everything is okay so that that positivity can work together and bring each one of us in front of each other with a smiling face through all these small windows that we are at present connected with. The first webinar we started on 2nd October 2020. That was under the umbrella of Communication Today, the one which is being taken care of by Professor Sanjeev Bhanawat. And it has already completed 27 years of its publication. And we are using both the languages, Hindi as well as English, for all the articles and research papers, research in this journal. Many academicians, many practitioners, research scholars and students, they all have contributed their thoughts through this journal, which has become a prominent communication journal, media journal, and the name we all know, Communication Today. We were fortunate once Professor Bhanawat visited Bharati Vidyapeeth and met Professor Huda, a very vibrant personality, and he offered to get a collaboration done with Communication Today. And both these giant personalities came together to give it a wonderful shape, much more wonderful shape through the technical side also. Hence, we have been
conducting all these webinars, and fortunate and happy and joyous that we could complete 100 webinars under the umbrella of communication today. And rest of the webinars till this 134th, that means this is the 34th webinar in collaboration with Bharati Vidyapeeth. And today's topic, as we all know, it's a very, very important topic. We need to remember all our celebrities. And here we have a sports celebrity who needs to be talked about. And to throw light upon this particular celebrity, we have amongst us Professor Smita Mishra. She is from Department of Hindi and she's editor, Sports Krida Khalsa College, New Delhi. And we also have Shri Abhishek Tripathi ji with us, sports editor, Dainik Jagran, and president, Delhi Sports Journalist Association, New Delhi. So I welcome both these speakers as well as all the participants, those who have connected with us for this 134th webinar, and looking forward to hear all the insights from these dignitaries, the expertise that they have with them. Thank you so much. Most welcome, and thank you so much, sir. Over to you. चलिए, आपके इस प्रस्तुति और स्वागत उद्बोधन के बाद मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका सिंह जी से, जो भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से आपने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है और वर्तमान में आप पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हैं रेडियो पॉडकास्टिंग पे। रेडियो इंडस्ट्री में आपका काम करने का कुछ वर्षों का अनुभव आरजे प्रियंका के रूप में आप चर्चित रही हैं। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे दोनों जो विशिष्ट अतिथि हैं, वक्ता हैं, प्रोफेसर स्मिता मिश्रा और अभिषेक त्रिपाठी जी, उनका ई बुके से स्वागत करें। जैसा कि हमारी यहाँ परंपरा है, जब हम कोई एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं फिजिकल मोड पर, ऑफलाइन मोड पर, तो हमारे अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर उनका हम स्वागत करते हैं। इसी परंपरा को इस ऑनलाइन माध्यम में भी हमने बनाए रखने की कोशिश की है। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आप बुके भेंट करें। प्रियंका जी। सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि आज के हमारे जो भी स्पीकर्स हैं, इतने प्रोमिनेंट स्पीकर्स हैं, उनको मैं हमारे ई बुके के थ्रू उनका वेलकम कर सकूं, एक जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड शो कर सकूं। एंड वी ऑल गैदर्ड हियर एज द ऑनर ऑफ लेजेंडरी मेजर ध्यानचंद जी, a hockey icon whose incredible skills and dedication and sportsmanship continues to inspire us. So basically sportsmanship एक ऐसी क्वालिटी है जो अगर हम कॉमन लोगों ने समझ लिया कि वो क्या है, किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, किस तरीके से हमें एक इक्वालिटी मेंटेन करके आगे बढ़ना चाहिए, तो वी शुड बी इन अ राइट पाथ टुवर्ड्स आवर लाइफ. सो थैंक यू सो मच सर, and thank you so much today's dignitary who have gathered here on this topic. Thank you so much sir. जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। आगे बढ़ने के पहले मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर एम.एन. हुडा जी से, डायरेक्टर भारतीय विद्यापीठ, जिनके नेतृत्व में इस इंस्टीट्यूशन ने कंप्यूटर्स और जर्नलिज्म दोनों ही डिपार्टमेंट के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां अर्जित की है। जैसा डॉक्टर उषा ने बताया कि मुझे मौका मिला था पिछले वर्ष अक्टूबर में उनके एक आयोजन में सम्मिलित होने का। वहां मैंने उनके उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, किस तरह से आपने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उस आधारभूत ढांचे को विकसित करते हुए मीडिया कर्मियों की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए लगभग मेरे ख्याल 18-20 फैकल्टी मेंबर्स आपके पास हैं। वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर हुडा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं, वहीं से आपने कंप्यूटर साइंस में अपना पीएचडी और मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की है। तकनीक के विशेषज्ञ होने के साथ साथ आप एक संवेदनशील रचनाकार भी, एक कवि हृदय निदेशक इंस्टीट्यूट का किस संवेदनशीलता के साथ अपने इंस्टीट्यूट को, अपनी टीम को लीडरशिप देते हैं, उसके वो उदाहरण है। प्रोफेसर हुडा ने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का जर्नल प्रकाशित करना शुरू किया है पिछले कई वर्षों से, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके माध्यम से सिंगापुर स्प्रिंगर से ये प्रकाशित होता है। और इसके माध्यम से आपने
एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। तकनीक के क्षेत्र में दुनिया भर के जो शोधार्थी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें एक मंच पर लाकर के उनके शोध अनुसंधान को लाया जाए उस जर्नल के माध्यम से। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर हुडा से कि वे इस अवसर पर हमारे जो दोनों स्पीकर्स हैं उनके सम्मान में एक स्वागत उद्बोधन और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रोफेसर एम.एन. हुडा। हुडा जी सर, आपका माइक। अब ऑडिबल हूँ? यस सर। जी सर। So thank you so much, Banawat sir. And at the outset, let me take this opportunity to welcome both of our eminent and accomplished experts, Professor Asmita Mishra, who is from the same city, Delhi, where from I am, from Khalsa College, University of Delhi, New Delhi, and Shri Abhishek Tripathi ji, who is a sports editor, Dainik Jagran, and that I did not know, but after this leaflet of the program flyer, I could know that he's president of Delhi Sports Journalist Association. So, Shri Abhishek, we wanted to collaborate with you to make a student chapter and see to it that many of the students who have interest in sports journalism could join your Delhi Sports Journalist Association. So thank you so much for having accepted our invitation. Of course, the patronage of the same goes to the veteran जर्नलिज्म प्रोफेसर संजीव बनावत। मैडम ने बिल्कुल सही बताया कि इस प्रोग्राम के पिलर ही नहीं, इसके आर्किटेक्ट, इसे प्रस्तुत करने वाले, इसे हम सब के लिए बढ़िया से बढ़िया हो सके और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी न छूटे जिसको हम सेलिब्रेट न करें जर्नलिज्म डोमेन में। ये सब बनावत सर अपने पर्सनल कंफर्ट की कॉस्ट पे, अपनी फैमिली के कंफर्ट की कॉस्ट पे हम सब के लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। और इस वजह से मैं कहता हूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है जहां नॉलेज शेयरिंग है, उसके साथ ये एक प्रेरणा का पॉइंट है, एक इंस्पिरेशन का पॉइंट है कि हम अपने फेलो प्रोफेशनल के नॉलेज प्रोसेस को अपग्रेड करने के लिए, उनको लर्निंग के प्रोसेस में कंटिन्यू रखने के लिए किस तरीके से अपने पर्सनल कंफर्ट, अपनी फैमिली के कॉस्ट पे अपने प्रोफेशन के डोमेन को आगे बढ़ाएं और उनको इससे कनेक्टेड रखें। ये इस तरीके का इंस्पिरेशन है जो बनावत सर हम सब लोगों को देते हैं। और यही पॉइंट था कि मैंने सोचा कि मैं उनसे मिल के ये प्रेरणा लेने की कोशिश करूं, इस वजह से मैंने उनको इनवाइट किया। और इनवाइट करने के बाद हमारा एसोसिएशन इस हद तक पहुंचा कि मैंने सोचा कि ये जो एक बड़ी जर्नी की शुरुआत बनावत सर ने की है, इसमें थोड़ी बहुत आहुति अगर हम दे सकें तो हम दें। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर जो आपकी अगली सीरीज ऑनवर्ड्स है उसमें भारतीय विद्यापीठ अपने सारे रिसोर्सेज के साथ, अपनी सारी फैकल्टी के साथ, अपने सारे मैन पावर के साथ जुड़ना चाहता है कि हम इस जो आप एक लिगेसी चला रहे हैं, जैसे लिगेसी ऑफ मेजर ध्यानचंद की बात हम कर रहे हैं, वैसे लिगेसी ऑफ बनावत सर वेबिनार सीरीज में हम जुड़े। और उन्होंने हैप्पीली से एक्सेप्ट किया। एंड फ्रॉम 101st webinar series, we are part of this great webinar series, which I have not seen that any other webinar series continues like this, because I am running a technical webinar series under the patronage of IEEE and many other professional societies. उसकी कुछ 154 श्रृंखलाएं हो चुकी हैं। और जब उसको मैंने एक एजुकेशन के लिए IEEE हेडक्वार्टर भेजा तो उन्होंने एजुकेट करके ये बताया कि 100 से ज्यादा चलने वाली वेबिनार सीरीज टेक डोमेन की अकेली ये है और बेस्ट सस्टेनेबल वेबिनार सीरीज का अवार्ड मिला। तो ये जो हमारी जर्नलिज्म डोमेन की वेबिनार सीरीज है, इसको कहीं एजुकेट किया नहीं गया, नहीं तो ये भी अपने आप में मोस्ट सस्टेनेबल वेबिनार सीरीज ऑफ द वर्ल्ड आज की डेट में है, जहां सिर्फ एक वेबिनार सीरीज नहीं है, आप देखें ह्यूज रिपोजिटरी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके जरिए 1 लाख से ज्यादा लोग सिंस बिगनिंग इस प्रोग्राम से इंस्पायर हो चुके हैं। इसमें आप देखें तकरीबन 350 से 400 लेक्चर्स और उससे ज्यादा एक्सपर्ट्स इनवाइट किए गए हैं। ये एक बड़ा सफर है, जिस सफर को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये एक लेक्चर सीरीज है, राइट, रादर इट इज ए फेनोमेना व्हिच इज हैपनिंग इन ए फेनोमेनल वे। एंड आप देखें कि
every opportunity is being celebrated. कभी कभी ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 वेबिनार फ्लोट होती हैं, 3 लेक्चर सीरीज होती है, बिकॉज उस हफ्ते में 3 मेजर सेलिब्रेशंस के दिन है। और जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इन 134th वेबिनार सीरीज, दैट प्राइमरीली इज टू रिमेंबर एंड कमेमोरेट द लिगेसी ऑफ ध्यानचंद। और ध्यानचंद की क्या बात है भाई, ध्यानचंद तो हम दिल्ली में रहने वाले हैं। ध्यानचंद स्टेडियम में जब नया नया दिल्ली में आया और ध्यानचंद स्टेडियम देखा, तब मुझे समझ में एक जिज्ञासा आई और समझ में आया कि ध्यानचंद का क्या कंट्रीब्यूशन था। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, गाड़ी रोकी है मैंने, कि मैं ज्यादा बोलने के बजाय अपने जो दोनों आज हमारे अकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स हैं उनसे सुनना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस ध्यानचंद के बारे में कहना चाहूंगा कि ध्यानचंद ने जो अद्भुत क्षमता हॉकी की थी और जो उनकी शैली थी खेलने की, इस वजह से पूरे दुनिया ने उनको हॉकी का जादूगर का खिताब दिया है। तो हॉकी का सचमुच कोई जादूगर है, एवर टाइम ग्रेटेस्ट प्लेयर है तो वो ध्यानचंद है और ध्यानचंद ही रहेगा। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हमें मैसेज मिल रहा वो ये मिल रहा है इस डे पे कि स्पोर्ट्समैनशिप, कॉम्पिटिटिवनेस से जुझारूपन, अपने क्षमताओं को अच्छे से अच्छा करके प्रस्तुत करना और उससे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हासिल करना, ये जो स्पोर्ट्समैनशिप से हमें सबक मिलता है वो सबक आज ध्यानचंद को याद करके भी हमें सीखने का मकाम है। अवार्ड्स, अकॉम्प्लिशमेंट, ये ध्यानचंद के काम के आगे छोटा पड़ जाता है। आप पद्म भूषण की बात करें, जो भी अवार्ड करें, सब उन्होंने हासिल किया, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी के काम के आगे वो सब अवार्ड छोटे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इंडिविजुअल को अवार्ड से रिकॉग्निशन मिलती है और बहुत बार वाइस वर्सा ऐसा होता है कि उस अवार्ड को उस इंडिविजुअल के ऊपर दिए जाने की वजह से रिकॉग्निशन मिलती है। ऐसा बहुत बार जो अवार्ड्स ध्यानचंद को दिए गए उससे रिकॉग्निशन अवार्ड्स को मिली है। सो थैंक यू सो मच। जितने भी हमारे आज व्यूअर्स जुड़े हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सब का भी स्वागत है। और आज दो अकॉम्प्लिश्ड एक्सपर्ट्स हमारे बीच हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी क्षेत्र में अपनी अकॉम्प्लिशमेंट साबित की हैं। वो हमें ये बताएंगे कि सिर्फ एक ध्यानचंद का काम नहीं, बल्कि ध्यानचंद के काम से जो इंस्पायर होने के लिए सफिशिएंट इनपुट हमारे पास है वो हमें किस तरीके से इंस्पायर करेगा। और बनावत सर के लिए ये 2 पंक्तियां मैं बहुत दिन से कहता हूं, उसी पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि बनावत सर की जो इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव को हम लोग जिस तरीके से भी आगे बढ़ाते रहें, उसको उनके लिए एक इंकरेजमेंट का सोर्स बने, उनके लिए उनके इस इनिशिएटिव से ज्यादा फायदा उठाएं। तो जो लोग यूट्यूब चैनल नहीं देखते हैं वो यूट्यूब चैनल देखें, जो बाद में अपने फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम नहीं अटेंड किया, उनको इन प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश करें। उनके लिए मैं हमेशा ये शेयर कहता हूं कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद लाइफ कंफर्ट से गुजार सकते थे, लेकिन वो आज भी अपना हर क्षण, अपना हर मोमेंट हम सब प्रोफेशनल के लिए कमिट कर रखा है, डेडिकेट कर रखा है। कि उनके लिए ये 2 पंक्तियां हैं कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, चिराग वहां जला दें जहां है अंधेरा। वो देखते रहते हैं कि अगले कौन से टॉपिक पे सेलिब्रेशन बन सकती है, जहां हम अपने फेलो कलीग्स को, फेलो प्रोफेशनल्स को, अपनी कम्युनिटी को इंस्पायर कर सकते हैं, कुछ समाज में रोशनी ला सकते हैं, कुछ समाज में लाइव ला सकते हैं, कुछ समाज में जिज्ञासा को उजागर कर सकते हैं। जिसके लिए वो चल रहे हैं उसके साथ चलना चाहिए। और बनावत सर और सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे 13-14 सितंबर को ICSSR के सौजन्य से, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के सौजन्य से एक विकसित भारत के टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस भारतीय विद्यापीठ परिसर दिल्ली में हो रही है, जो बनावत सर की अध्यक्षता में होगी। 13-14 बनावत सर हमारे बीच होंगे, दोबारा होंगे। जब आप आएंगे तो आपको वो 18-19 फैकल्टी से अब आपको तकरीबन 24-25 फैकल्टी मिलेंगी और देश के अलग अलग जगह से लोग आएंगे। वो जो सफर है वो हम आपसे सीख कर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, ऑफलाइन भी अवेलेबल होगी। जो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं वो आए हमारे साथ, ऑफलाइन जुड़ें। जो हमें कुछ अपना लेक्चर दे सकते हैं वो उसके लिए जुड़े, पेपर सबमिशन का स्टेज खत्म हो चुका है। जो ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते वो ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश करें। और बहुत सारे लोग जब आएंगे तो वो जो हमारा समागम है, वो समागम, वो जो हमारी टुगेदरनेस है, वो जो मोमेंट है, वो ज्यादा मेमोरेबल बन सकती है, वो ज्यादा यादगार बन सकती है, वो ज्यादा यूजफुल बन सकती है। उससे सिग्निफिकेंट इनपुट हम ले सकते हैं और उस इनपुट से हमारे काम
करने के तरीके में, या जो हम सोच रहे हैं, या जो रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं. सो थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. वी लुक फॉरवर्ड हैविंग यू ड्यूरिंग 13th and 14th of September, around 15 days away in Delhi, the national capital of Delhi. Wish you all the best. God bless you all. And over to you, Banawat sir. जी, बहुत बहुत आभार हुडा साहब आपके इस आत्मीय उद्बोधन के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के इस महत्वपूर्ण दिन के अवसर पर हम सभी मेजर ध्यानचंद जी को याद कर रहे हैं। पूरा परिवार एक तरह से हॉकी के लिए समर्पित रहा। उनके भाई रूप सिंह और उनके पुत्र अशोक कुमार हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी रहे। तो आज का जो हमारा विषय है, जैसा बताया गया कि लीगेसी ऑफ मेजर ध्यानचंद, लेसन्स फॉर मॉडर्न एथलीट्स। जैसा हुडा साहब ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने समर्पण, अपने अनुशासन और अपने टीम वर्क से, क्योंकि वो दौर ऐसा था, पराधीन भारत, ब्रिटिश भारत में कोई बहुत अधिक सुविधाएं नहीं होंगी उनके पास खेलने के लिए। जैसा मैंने पढ़ा उनके बारे में कि वो चंद्रमा की रोशनी में खेलते थे और उन्होंने इतनी स्किल्स हॉकी में प्राप्त कर ली कि लोग समझते थे कि उनके हॉकी के साथ कोई मैग्नेट जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा जादुई शक्ति उसमें है कि बॉल उससे चिपक जाती है। और ब्रैडमैन ने तो एक बार यहां तक कहा था, जब इन्होंने एक सीजन में करीब 200 गोल किए थे, एडिलेड का जो मैच था उस समय, कि ये हॉकी का खिलाड़ी खेल रहा है या क्रिकेट में रन बन रहे हैं। 24 गोल से अमेरिका को उस दौर में हराने की कोई कल्पना शायद नहीं कर सकता होगा। और जर्मनी में हिटलर की प्रेजेंस में जब फाइनल हो रहा था, आप समझ सकते हैं कि अपने ही देश में जब मैच हो रहा है, उस समय वो पूरा देश, पुटिन की हम बात करते हैं, वो अपने देश के समर्थन में होगा, उसमें भी वो हतोत्साहित नहीं होते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं। कहते हैं कि हिटलर मैदान से बाहर चला गया और बाद में उसने मेजर ध्यानचंद से कहा कि आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, मैं आपको इस देश की नागरिकता प्रदान करूंगा, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। तो एक ऐसा देशभक्त, राष्ट्र नायक, विनम्र स्वभाव के, आत्मविश्वास और धैर्य के धनी, नम्रता की मिसाल मेजर ध्यानचंद ने, मुझे लगता है यह नाम आने वाली कई सदियों तक जीवित रहेगा। स्मिता जी से अक्सर बात होती रही और अशोक कुमार जी से तो इनका व्यक्तिगत परिचय भी रहा, उनके घर पे भी वो गई। और जब मैंने फेसबुक पे वो पोस्ट देखी कि वो ध्यानचंद जिस हॉकी से खेलते थे, तो वो जब उन्होंने हाथ में ली तो उसका रोमांच मैं समझ सकता हूँ उस समय कितना उनको रहा होगा। तो इस देश का सौभाग्य है कि 3 ओलंपिक्स में लगातार गोल्ड मेडल दिलवाने वाली उस शख्सियत को आज हम स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में याद कर रहे हैं। 29 अगस्त 1905 में तत्कालीन इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में उनका जन्म होता है और उन्होंने अपनी ही एक सेना के सहयोगी की प्रेरणा से हॉकी खेलना शुरू किया और इतनी ऊंचाइयों पर इस खेल को ले गए। तो आज के इस अवसर पर हम उनकी उस विरासत को याद करते हुए, हमारे साथ जो 2 एक्सपर्ट्स हैं, जैसा बताया गया, प्रोफेसर स्मिता मिश्रा और अभिषेक जी, जिनका अपने अपने क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है, तो इस सारे परिदृश्य को हम किस रूप में देखते हैं, क्योंकि जब कुछ भी हमारे पास नहीं था तब उन्होंने खेल को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और आज जब सब कुछ है तो हम कहाँ पीछे हैं या क्या उपलब्धियां हम अर्जित कर पा रहे हैं। क्योंकि ध्यानचंद का जीवन तो इस बात की मिसाल है कि आप कमिटमेंट के साथ यदि कोई काम करते हैं तो उसमें उत्कृष्टता की ओर पहुंचना असंदिग्ध है, आप पहुंच सकते हैं। ये दिवस भारत में खेल संस्कृति को विकसित करने का दिवस है। ये दिवस शारीरिक फिटनेस को बेहतर बनाने का दिवस है। तो आज भी ध्यानचंद की उस विरासत को हम बचाए हुए किस तरह से इस देश को खेल जगत में उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं, इन्हीं कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर स्मिता मिश्रा को, जिनका लगभग 2 दशक का मेरा संवाद आपसे है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर की जो उनकी पूरी यात्रा है उसका मैं साक्षी रहा हूं। आप SGTV कॉलेज, खालसा कॉलेज में हिंदी और मीडिया विभाग जो है आपका, वहां प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही है।
और साहित्य और खेल दोनों से आपका बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। स्पोर्ट्स क्रीड़ा की संपादक के रूप में आपने विशेष उपलब्धि अर्जित की है। यह एक बाइलिंगुअल मासिक पत्रिका है जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पहली महिला संपादक के रूप में आपको सम्मानित किया है। पत्रकार संगठनों से भी आपका जुड़ाव है। आप दिल्ली की जो महिला पत्रकार संघ है उसकी भी सदस्य है और अभी कुछ वर्षों पूर्व आपने जो सार्क पत्रकार फोरम है उसको भी आपने ज्वाइन किया है और दिल्ली में देश के अन्य स्थलों पर अंचलों में आपने कुछ विशिष्ट आयोजन भी किए हैं। सार्क जर्नलिस्ट फोरम का जो इंडिया चैप्टर है उसके 2023 के अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है और हिंदी के पहले पत्रकार युगल किशोर शुक्ल के नाम से वो शुरू किया गया, उस पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। आपकी एक पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भारतेंदु पुरस्कार से, भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये पुरस्कार है, वहां से भी वो पुरस्कृत हो चुकी है भारतेंदु पुरस्कार के नाम से। महिलाएं व खेल, इस पर एक आपकी डॉक्यूमेंट्री थी जो वर्ष 2016 में लाडली मीडिया पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। ICSR से 2005 में आप विदेशों में हिंदी अध्यापन के लिए आपका चयन हुआ था। पिछले वर्षों में विश्व हिंदी सम्मेलन जो दुनिया के अलग अलग देशों में आयोजित किए गए उसमें भी आपकी नियमित सहभागिता बनी रही है। मीडिया एक अंतर यात्रा, साहित्य और समाज विविध संदर्भ, ओलंपिक गाथा, ईश्वरीय मिथक से मानवीय मिथक तक, भारतीय खेल समकालीन संदर्भ, ओलंपिक के महानायक, भारतीय गांव बदलते संदर्भ, गीत फरोश, संवेदना और शिल्प आपके स्वयं की लिखित पुस्तकें हैं और इसके अतिरिक्त आपने लगभग 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों का संपादन किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रामदर्श मिश्र रचनावली 14 खंडों में। यहाँ इस बात को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर रामदर्श मिश्र इस देश के एक वरिष्ठ साहित्यकारों में हैं और अभी हाल ही में आपने उनकी जन्म शती समारोह 100 वर्ष उन्होंने उनके जो उम्र है उसके पूरे हो गए हैं और एक बहुत बड़ा फंक्शन अभी दिल्ली में आपने आयोजित किया था और उनके नाम से आपने एक पुरस्कार भी शुरू किया है युवा रचनाकारों के लिए। और पिछले संडे को जनसत्ता में आपके पिताजी पर का पूरा इंटरव्यू पूरे पेज का उसके जो कार्यकारी संपादक है मुकेश भारद्वाज जी, उन्होंने प्रकाशित किया है। तो ऐसे एक वरिष्ठ और महान साहित्यकार की आपको पुत्री है। डिजिटल क्रांति और हिंदी, भारतीय मीडिया अंतरंग परंपरा आदि अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जो आपने संपादित की हैं और हाल ही में आपको दिल्ली सरकार ने जो वहां की हिंदी समिति है उसमें भी मनोनीत किया है और उसकी जो कार्यकारी परिषद है उसमें भी आप एक सदस्य के रूप में है। तो एक तरह से दिल्ली के मीडिया और साहित्य जगत से आपका बहुत ही निकट का संबंध रहा है। हमारे इस आयोजनों में पहले भी आपका जुड़ाव हो चुका है। देश के अनेक स्थलों पर, अनेक मंचों पर आयोजित कार्यक्रमों में मुझे आपका बराबर सानिध्य मिलता रहा है। तो मैं स्मिता जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के इस विषय के ऊपर अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करें। प्रोफेसर स्मिता मिश्रा। नमस्कार। परम श्रद्धेय गुरुवर भानावत सर, मैं जो भी कुछ मीडिया की समझ ले पाई हूँ इस यात्रा में, मेरा मेरी उंगली पकड़कर आगे चलाने वाले प्रोफेसर भानावत ही हैं, जो आज तक मैं इनके पीछे पीछे चल रही हूँ। और मुझे लगता है कि लेगेसी ऑफ ध्यानचंद के साथ साथ के बरक्स लेगेसी ऑफ प्रोफेसर भानावत, यह भी एक टॉपिक जरूर से ऐसा होना चाहिए जिसमें तमाम पूरे देश के अक्रॉस द नेशन हम इस मुद्दे पर बातचीत कर सकें। कवि हृदय वाले प्रोफेसर हुड्डा जी, मुझे पता चला आप कविताएं और कवि कर्म में आपकी रुचि है। आपको प्रणाम कि आप इतना महत् कार्य गुरुवर के साथ आपने हाथ मिलाया है। उषा साहनी जी, प्रियंका तकनीकी विभाग के विशेषज्ञ, और मेरे साथ मेरे सहवक्ता
अभिषेक त्रिपाठी जी, जिनके पास एक लंबा अनुभव है, लेकिन उम्र काफी कम है इनकी, और अनुभव इनके पास देश विदेश का बड़ा भारी है, और इस समय वो बहुत महत्व पद पर हैं। आज का जो विषय है ध्यानचंद जी की जो धरोहर है, और वो जो धरोहर है वो उस धरोहर को 20वीं शताब्दी से लेकर के 21वीं शताब्दी तक वो किस रूप में पहुंच रही है और पहुंचनी चाहिए। 1905 में जब मेजर ध्यानचंद जी पैदा होते हैं आज के दिन, तो वो समय था जब लॉर्ड कर्जन बंग भंग करते हैं, बंगाल का विभाजन करते हैं। यानी भारत की जो परिस्थितियां हैं वह एक बड़े ही तनावपूर्ण स्थितियों में जब समय गुजर रहा था, देश गुजर रहा था, उस समय ध्यानचंद जी पैदा होते हैं। और जब वे पहला ओलंपिक खेलने जाते हैं, उस समय साइमन कमीशन आता है देश में। तो यानी भारत जिस तरह से बन रहा था, संघर्ष कर रहा था, वो संघर्ष वह ध्यानचंद के जीवन में हम देख पाते हैं। ध्यानचंद जी कोई बचपन से ये सपना लेके नहीं पैदा हुए थे। सामान्य घर के इलाहाबाद में पैदा हुए और वे फौज में दाखिल होते हैं, फौज में शामिल होते हैं। उनके जो सीनियर होते हैं तिवारी जी, क्योंकि वो शायद ब्राह्मण रेजिमेंट थी, तो वो उनकी प्रेरणा से वह खेलने आते हैं। ध्यानचंद जी हॉकी खेलने लगते हैं, और हॉकी खेलते खेलते कैसे एक सैनिक जो है वह लांस नायक बनते बनते वह मेजर, लेफ्टिनेंट से मेजर तक पहुंचता है, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रेरक गाथा है। अगर हम ये बात करें 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक की, उसके पहले न्यूजीलैंड दौरा होता है। यानी उससे लगभग 1 साल पहले ही FIH यानी हॉकी फेडरेशन भी गठित होती है, और वो ये तय करती है कि ओलंपिक में भेजना है। उसके पहले न्यूजीलैंड हमारी टीम जाती है, और इनका जो खेल होता है वो खेल सबको चमत्कृत करता है, और उसके बाद ये ओलंपिक में जाते हैं। मैंने ऐसा पढ़ा कि ओलंपिक शुरू होने से कुछ समय पहले ही इंग्लैंड ने अपना नाम वापस ले लिया, अपनी एंट्री वापस ले ली। वो इसलिए ले ली कि वह भारत को जिसने गुलाम बना रखा है, उनसे हार जाने का जो भय है, उनकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं वो चोट पहुंचाता, तो ऐन समय पे उन्होंने विड्रॉ कर दिया ध्यानचंद की प्रतिष्ठा सुनकर। तो ध्यानचंद लगातार 3 ओलंपिक में भाग लेते हैं, और तीनों ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करते हैं। इसके बाद लॉस एंजलिस 1932, और उसके बाद 36 का वो बर्लिन ओलंपिक, जिसका जिक्र गुरुवर ने किया और हुडा साहब ने भी किया, कि किस तरह से हिटलर का जो अपार्थाइड जो नीति रही, जो आर्यन बेस्ट की जो पॉलिसी रही, उसको किस तरह से ये फाइनल में चकनाचूर करते हैं। जब 9-1 संभवतः 9-1 से, अभिषेक जी मुझे करेक्ट करेंगे, 9-1 से वो जर्मनी को फाइनल में हराते हैं। और यही नहीं, हाफ टाइम तक जब भारत लीड कर रहा होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो जर्मन टीम है वह, जैसे हम लोगों में होता है ना कि जब हम हारते हैं तो फिर हम थोड़ा सा चीटिंग पर और मारपीट पर उतर आते हैं, तो उस तरह का रफ खेल शुरू हो जाता है, जिससे उनका दांत भी टूट जाता है, और वो बाहर जाते हैं। लेकिन बाहर फिर वो वापस आते हैं, और नंगे पैर वो स्पाइक्स, वो जूते सब हटा देते हैं, नंगे पैर खेलते हैं। बाकी तो ऐसी हिस्ट्री सबको पता है। लेकिन ये जो अंतिम इन्होंने ओलंपिक खेला, वहां से लेकर आज के समय तक, कहते हैं ना पुल के नीचे से पानी बहुत बह चुका है। तो इस 92 साल में, 92 इयर्स में भारतीय खेल जो है वो वहां उस तमाम चरणों से गुजर चुका है। मेजर ध्यानचंद, जब हिटलर उनको
प्रलोभन देते हैं कि हमारे देश में आ जाइए, बेहतर एक जीवन का सपना देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एक औसत आदमी इस तरह के जो लुभावने प्रस्ताव होते हैं उनके आगे झुक जाता है। यानी जो अपने देश में जिनके पास पहनने को जूते नहीं है, खाने को पर्याप्त फूड नहीं है, या जीवन की परिस्थितियां नहीं है, यदि उसे ऐसा लुभावना प्रस्ताव मिलता है तो मुझे लगता है कि कोई भी औसत व्यक्ति उन प्रस्तावों को स्वीकार करता है। आखिरकार आज भी तो हमारे देश से एक लंबी परंपरा है विदेश जाने वालों की, वो किस लिए जाते हैं? वो कहीं ना कहीं एक बेहतर लुभावने जीवन को ध्यान में रख के जाते हैं। तो उस समय मेजर ध्यानचंद, जो कि गुलाम देश में हैं, वह इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं। ये अपने आप में उनकी जो दृढ़ता है, चारित्रिक दृढ़ता है, राष्ट्रबोध है, और ये ओलंपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें भारतीय जो जो झंडा है उसको भी लिया गया था, जिसे नेहरू जी ने अनवील किया था। तो एक पूरी ये जो महानायक का जो कंसेप्ट है कि किस तरह से जीवन संघर्षों से गुजरते हुए वो हीरोइक प्रेजेंस बनाते हैं, अपनी एक ऊंचाई, एक कद्दावर व्यक्तित्व क्रिएट करते हैं, वो निश्चित रूप से उनकी जो संघर्ष है उन आने वाले तमाम केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि जीवन के हर क्षेत्र में जो व्यक्ति कहीं ना कहीं हारा हुआ है परिस्थितियों से, उसके सामने वह एक आदर्श के रूप में होते हैं कि जब वे ऐसी स्थितियों में सक्सीड कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि ध्यानचंद जी का जो अनुशासन है, जैसे आपने बताया कि वो ध्यान सिंह नाम होता है उनका, लेकिन ध्यानचंद नाम पड़ता है केवल इसलिए कि उनके साथी जब उनको देखते हैं कि वो रात में अभ्यास कर रहे हैं, चांद की रोशनी में, क्योंकि लाइट नहीं है। तो यह जो डेडिकेशन है, ये जो समर्पण है, यह उनके व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और एक कई सारे बिंदु है जिस पर मैं बात करूंगी स्पोर्ट्स को लेते हुए, क्योंकि 1924 का समय था जब भारतीय महिलाएं भी ओलंपिक में उन्होंने एंटर किया था, प्रवेश किया था। तो यानी कि 1924 में जो विदेशी किताबें हैं वो केवल मार्गरेट पॉली का नाम लेती हैं कि वे लॉन टेनिस में आई थी, खेली थी। लेकिन मेहरबाई टाटा जो टाटा ही परिवार की थी, उनकी टाटा खानदान की बहू थी, वो एक खेलती थी, मिश्रित युगल में वो गई थी, लेकिन उनका नाम नहीं मिलता। कदाचित वो साड़ी पहन के खेलती थी, वो भी पारसी शैली में साड़ी पहन के खेलती थी, इसलिए शायद ड्रेस कोडिंग के चलते उनको खेलने नहीं दिया गया, ऐसा मैंने पढ़ा। तो ये वो समय था कि जब पराधीन भारत में एक खेल केवल खेल नहीं था, वो जीवन, अपनी आजादी, अपने व्यक्तित्व, अपने लक्ष्य को पाने का एक माध्यम रहा। इसलिए आजादी की लड़ाई और जो जीवन, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान पाने की लड़ाई साथ चलती रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जब हमें आजादी मिल रही है, आजादी मिलने के बाद अगर मैं देखूं कि आज का समय देखूं यदि मैं, तो पहले खेल का लक्ष्य खेल होता था। आज पहले महानायक खेल में श्रम समर्पण के द्वारा बन रहे थे, आज खेल के महानायक वे बन रहे हैं जिसे बाजार है, जिसे विज्ञापन मीडिया बनाना चाहती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पर देश की राजधानी में स्टेडियम है, लेकिन जब भारत रत्न देने की बात आती है तो उस भारत रत्न देने में स्पेशल उसमें अमेंडमेंट्स की जाती हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी का प्रावधान नहीं था। लेकिन बाजार की ताकतें एक ऐसे खिलाड़ी को भारत रत्न दिलवाने पर जोर देती हैं जिसके साथ उनके लंबे करार थे, ब्रांडिंग थी।
तो जाहिर सी बात है आज के महानायक और अभिषेक जी तो चूंकि हमारे साथ में ही हैं, तो जब मीडिया सचिन के एक सेंचुरी को, उनकी फोटो को वो 3/4 पेज पर, जिसमें वो बल्ला आसमान की ओर दिखाते हुए भगवान का शुक्र कर, तो वह उन्हें भगवान, सचिन को क्रिकेट का भगवान बना दिया जाता है, ये तमगा दे दिया जाता है। तो यह जो प्लेसमेंट है मीडिया की, जो ब्रांडिंग है कि जब तक वो 100 सेंचुरी नहीं मारेंगे तब तक उन्हें टीम से आउट नहीं किया जाएगा। तो ये जो दबाव है, यह दबाव हावी हो रहा है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि जो ध्यानचंद जी हैं, जिन्होंने जीवन में शॉर्टकट्स नहीं अपनाए, सिंपलिसिटी और डेडिकेशन मुझे लगता है उनके मूल मंत्र रहे, जिसके चलते वे चीजें करते हैं। जब मैं उनके घर गई, झांसी में गई, आप इमेजिन कीजिए, मैं झांसी रेलवे स्टेशन पर उतरी हूँ और मुझे कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ रहते हैं। मैंने ऑटो वाले से कहा कि मुझे ऐसे जाना है, मुझे पता नहीं है। तो वो ऑटो वाला कहता मैं आपको ले चलता हूँ। और वो ऑटो वाला मुझे ध्यानचंद जी की जो गली थी, क्योंकि उसके भीतर स्कूटर नहीं जा सकता था, ऑटो नहीं जा सकता था, उसने मुझे बाहर उतार दिया कि ये सामने वाली जो है ये घर उनका है। और जब मैं उस गली में मैं जब पैर रख रही थी, तो मुझे इस तरह का रोमांच हो रहा था कि यही वो गलियां थी जिसमें ध्यानचंद जी जो है, उनके हॉकी की जो स्टिक है वो यहीं पर ही वो अपना कमाल दिखाती होगी। और उस घर में घुसना, बड़े में घुसना, जहां पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो तमाम मेडल्स लगे हुए हैं, तमाम हॉकी लगी हुई है, वो 1936 का जो मेडल का रेप्लिका है वो लगा हुआ है, वो सर्टिफिकेट लगा हुआ है। और अशोक जी ने कृपा करके मुझे वो जो हॉकी स्टिक है जिससे ध्यानचंद जी खेला करते थे, वो मेरे हाथ में जब दी, तो उसको छूते हुए पहले मैं हाथ लगाने में मुझे भय हो रहा था कि मैं उसको पकड़ने के लायक भी हूँ कि नहीं हूँ। तो उसको जब छूना, उसके बाद से मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो अनुभूति हो रही थी कि मैंने एक ऐसे दुनिया के महानतम हॉकी खिलाड़ी की हॉकी हाथ में ली हुई है, और कदाचित यही वो हॉकी रही होंगी जो औपनिवेशिक भारत में स्वतंत्रता की लौ जिससे वो जगाते रहे। तो मुझे लगता है कि आज जो खिलाड़ी है, जो बाजार से बन के आ रहा है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ काफी स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स किए। साइना नेहवाल पे हमने पायलट स्टडी की थी 2012 में। तो हमने ये देखा कि जो मेकिंग ऑफ प्लेयर होता है वो संघर्षों से गुजर रहा है, जिन स्ट्रगल से गुजर रहा है। एक महिला, एक लड़की जो है वो अपने घर से निकल रही है, अगर खेलने निकल रही तो उसकी क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, एक फीमेल की क्या क्या स्ट्रगल। हमारे देश में जो खेल है, खिलाड़ी अमूमन अच्छे घरों, अच्छे मतलब बड़े जो इकोनॉमिक स्ट्रेटा है वो बहुत बेहतर जगहों से नहीं आते हैं, कमजोर घर से हमारे यहाँ खिलाड़ी आते हैं, खासतौर पर टीम गेम में। तो वो उनके लिए जो खेल है उनकी एग्जिस्टेंस का पर्याय होता है कि उससे एक उनको नौकरी मिलेगी, जिस नौकरी से वो अपनी हालत सुधारेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर करेंगे। तो ऐसे ऐसे जब खिलाड़ी आते हैं, और फिर कुछ खेल ऐसे हैं जहां पर अपर स्टेटा के जो लोग आते हैं, जो इंडिविजुअल गेम्स होती हैं वहां से आते हैं, तो वह वैल्यूज, वह जो मूल्य है वो संभवतः उनके लिए बेमानी हो जाते हैं, जो मूल्य हमें ध्यानचंद की जीवनी, ध्यानचंद के खेलों से पता चलता है। साइना नेहवाल से जब हमें मिलना था, तो जब तक वो इंडिविजुअल थी, ओलंपिक मेडल नहीं जीता था, रीति स्पोर्ट्स के साथ उनका करार नहीं हुआ था, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तब तक हम उनसे आसानी से मिल लेते थे। लेकिन जैसे ही पीआर कंपनी ने प्लेयर्स को अपने हाथ में ले लिया, मार्केट अपने हाथ पे ले लिया, उनकी परफॉर्मेंस भी सफर करती। दूसरा, आम मीडिया या आम लोगों से वो मिल नहीं सकते बिना उनकी परमिशन के। तो यह जो
पूरा बाजार बीच में आता है। यह बाजार, इसके अपने फायदे भी हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन फायदे ये हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, खिलाड़ियों की हो रही है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमेशा खेल संघ को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पिछले कुछ ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को कितनी सुविधाओं के दी जा रही हैं, करोड़ों करोड़ रुपया ट्रेनिंग पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद वे अगर असफल हो रहे हैं या टू द पॉइंट वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आ करके वापस सरकार पर ही अपना ठीकरा फोड़ते हैं। अभी इस ओलंपिक में भी हमने कई ऐसी चीजें देखी, तो वो जाहिर सी बात है कि वेट को कंट्रोल करना एक इंडिविजुअल प्लेयर का काम है, आप जिस कैटेगरी में जा रहे हैं। लेकिन आप अपनी असफलता को पीछे छोड़ करके उसे छुपाने के लिए आप दूसरों पर एलिगेशंस या ब्लेम गेम खेलने लगे, तो जाहिर सी बात है इसका अर्थ ये होता है कि खेल के चारित्रिक दृढ़ता को करने में कहीं ना कहीं असफल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा है क्योंकि मेरे मन के बहुत करीब है, मैं तो बोलती जाऊं, लेकिन ये जरूर है, मैं कहना जरूर चाहूंगी कि खेल जो जिस चीज का मैं अनुभव करती हूँ कि खेल जो स्पोर्ट्स वैल्यूज हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, शायद बहुत कायदे से इनकलकेट नहीं हो रही है इस मॉडर्न प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एरा में। और इस पर आगे मुझे लगता है कि अभिषेक जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत आभार स्मिता जी। आपने मेजर ध्यानचंद की जीवनी के उन बहुत सारे रोचक प्रसंगों का जिक्र किया जो कहीं न कहीं हमें प्रेरणा देते हैं, और किस प्रकार से आज का खेल जगत उस बाजारवाद के आक्रमण से या उसकी गिरफ्त में आ गया है और उसके किस तरह का परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। चूंकि आप स्वयं खिलाड़ी भी रही हैं और दूरदर्शन आकाशवाणी से आपने अनेक खेलों की अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की कमेंट्री भी की है, तो आप उन खिलाड़ियों के जीवन, उनकी संघर्ष यात्रा और जो आपके शोध परियोजनाएं हैं उनके माध्यम से आपने पूरे उस दौर को एक तरह से बहुत निकटता से देखा है। इसीलिए ये विषय आपके बहुत करीब, और मैं यूं कहूं कि बहुत भावुकता से भर जाते हैं आप जब भी इन विषयों पर बात करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा अभिषेक त्रिपाठी जी को। अभिषेक जी के पास भी मैं स्मिता जी के थ्रू ही पहुंचा हूं, और जैसा पूर्व में बताया गया, आप दिल्ली का जो खेल पत्रकार संघ है उसके अध्यक्ष हैं। तो एक प्रकार से हमारी राजधानी में जो एक संगठन है उसका नेतृत्व करने का मतलब यह है कि एक तरह से पूरे राष्ट्र की खेल पत्रकारिता को, उसकी धड़कन को, उसकी संवेदनाओं को कहीं आप देख समझ रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से आप निरंतर खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में जागरण के स्पोर्ट्स एडिटर के रूप में आप काम कर रहे हैं, और आपको देश दुनिया में घूमने का बहुत मौका मिला है। देश के तो बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट आपने कवर किए हैं, लेकिन करीब 20 देशों में यात्रा करने का आपको अनुभव मिला है। तो एक तरह से पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसको बहुत निकटता से आपने देखा है। आपको जब मैंने अनुरोध किया था कि अपना प्रोफाइल भेजने के लिए, तो आपने बहुत संक्षेप में भेजा। तो मैंने कोशिश की कि कुछ, मैं अब आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो गूगल के माध्यम से हमको मिलती हैं, तो मैं आपके उस परिचय को तलाश रहा था। तो जो एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली, भारत सरकार ने आपको सदस्य बनाया है, कि जो हम बात कर रहे थे, अभी उड़ा जी भी बात कर रहे थे कि जब मेजर ध्यानचंद की स्मृति में जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, खेल रत्न पुरस्कार दिए जा रहे हैं, राजीव गांधी के नाम से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आज प्रतिवर्ष सामान्यतः 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजन होता है। तो इन पुरस्कारों की जो चयन समिति है उसको दिसंबर 2023 में आपको उस कमेटी में भी लिया गया था। तो एक प्रकार से मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि आपने पूरे देश को, खेल परिदृश्य को, अपने पिछले 2 दशक की इस यात्रा में, जैसा स्मिता जी ने कहा कि आपकी उम्र भले ही ज्यादा नहीं हो, लेकिन जो अनुभव का गहनता है वो आपके व्यक्तित्व में समाई हुई है पूरी तरह। तो आपके पास अपने अनुभवों का एक पूरा खजाना है। तो हम चाहेंगे कि उस अपने अनुभव को अपने उस उद्बोधन के माध्यम से हमारे साथ आप बांटे। भाई अभिषेक त्रिपाठी जी। नमस्कार, मैं कानपुर से आता हूँ, दिल्ली में नोएडा में रहता हूँ, और खेल पत्रकारिता में आना भी एक संयोग था।
शटर वाले टीवी से क्रिकेट को देखते देखते इन खिलाड़ियों का शटर खोलने लगा। और अब मुझे खेल से कोई प्यार नहीं है, और क्योंकि जब तक मैं पत्रकार नहीं बना था और खेलों के अंदर के व्यापार का पता नहीं चला था, तब तक मुझे खेलों से बहुत प्यार था। अब मैं सिर्फ एक पत्रकार की दृष्टि से ही देखता हूँ, और जितनी मेरी नौकरी है उतना मैं सोचता हूँ, उसके अलावा मैं सोचता नहीं। आज के वेबिनार में मुझे व्यक्तिगत खुशी ये है कि मुझे अपनी फील्ड से अलहदा लोगों से मिलने का मौका कम मिलता है, और खास तौर से पढ़े लिखे लोगों से मिलने का मौका कम मिलता है, क्योंकि खिलाड़ी भी जो आते हैं वो कम ही पढ़े लिखे होते हैं, उनका खेलों पे ध्यान ज्यादा होता है। तो इतने सारे प्रोफेसर और डॉक्टर को देखकर मुझे कुछ भय भी लग रहा है, लेकिन जैसे जब आपने पीएचडी का फुल फॉर्म बता दिया था तो मेरा भय थोड़ा कम हुआ। तो लोग कहते हैं मैं वक्ता अच्छा हूं, लेकिन मैं बोलता कम हूं, और मुझे ऐसे मौके कम मिलते हैं, और आज यह मौका आप लोगों ने दिया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यानचंद जी के बारे में मेरा कहना कोई मतलब मैं बहुत उनके बारे में अगर कोई विचार प्रकट करूंगा तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी। मैं ध्यानचंद के पुत्र से भी मिला हूं, अशोक जी से, और आज उनके जो पोते हैं गौरव, उन्होंने एक कार्यक्रम किया था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। तो सुबह मैं वहां गया था, मैं वहां इनवाइटी था, उन्होंने सम्मानित भी किया मुझे। वो मेजर ध्यानचंद फाउंडेशन के नाम से कार्यक्रम चलाते हैं। तो सुबह मुझे वहां पे भी कई बड़े बड़े हॉकी लीजेंड से मिलने का मौका मिला। मुद्दा यह है कि देखिए, ध्यानचंद के बारे में यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं, उनको अगर जानना होगा तो गूगल में भरा पड़ा है, और किताबें भी भरी पड़ी हैं, आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं अगर कुछ बोलूं तो आपको कुछ अतिरिक्त मिलना चाहिए। जैसे जैसे आपने कहा मैंने अपना परिचय बहुत कम किया, तो वो एडिटर होने के नाते अब आदत हो गई है एडिट करने के लिए, और अपने अंदर खुद मुझे इतना कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं अपने बारे में ज्यादा लिखता भी नहीं हूँ, क्योंकि अब दूसरों के बारे में भी अच्छा दिखना कम हो गया है। तो इसलिए मैंने अपना संक्षिप्त परिचय आपको दिया, और एक इस पे भी विश्वास रखता हूँ कि खुद की बड़ाई ना करूं तो ज्यादा अच्छा है। अगर सामने से कुछ बड़ाई मिले तो ठीक रहता है। अब बात करते हैं परम आदरणीय ध्यानचंद जी की। ध्यानचंद जी को ना मैंने खेलते हुए देखा, ना मैंने उनको बहुत ज्यादा पढ़ा पत्रकारिता में आने से पहले, लेकिन पत्रकारिता में आने के बाद वो एक तरीके से मेरे लिए रस्म हो गए कि हर 29 तारीख को साल में एक बार उनको याद करना है, और बाकी जितने भी पत्रकार हैं वो भी रस्म अदायगी करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उनको मन से अदा करता है। और एक और छोटा एग्जांपल दूंगा, अभी भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक में। तो मैं एक प्लेयर का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उससे, बहुत बड़े प्लेयर है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि एक वो दौर था जब भारतीय हॉकी टीम लगातार मेडल जीतती थी, ध्यानचंद जी थे, अशोक ध्यानचंद जी थे। अब हमने थोड़ा सा पिकअप कुछ सालों बाद पकड़ा है कि हमने 2 लगातार कांस्य जीते हैं। वो मैं कोट अनकोट करके उन खिलाड़ियों का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि आपने तो उनको खेलते देखा नहीं था, हर समय आप उनको क्यों याद करते हैं? आपने हमको खेलते देखा, आप हमें याद करो, आप हमको देखो, हमारी चीजों को देखो, हमको हीरो मानो। उनको किसने देखा था? ये सोच सिर्फ 2 कांस्य जीतने वाले एक खिलाड़ी की है, जो उसी हॉकी से आता है, उसी हॉकी से वो आया है। और ये 2 कांसे ना मिलते तो उसके पहले का उसका 12 साल का करियर शून्य था।
तो ये एक खिलाड़ी की मेंटेलिटी होती है जो उसी खेल के जो सबसे बड़े लीजेंड या बहुत सारे लीजेंड को किस तरीके आंकता है। फिर हम आम जनमानस को क्यों दोष देते हैं? फिर हम भारत सरकार से क्यों कहते हैं कि आप ध्यानचंद जी को भारत रत्न नहीं दे रहे हो, सचिन तेंदुलकर को आप भारत रत्न दे रहे हो? हम ये क्यों कहते हैं कि मीडिया क्रिकेट को ज्यादा छापता है, मीडिया बाकी खेलों को कम छापता है? देखिए, मीडिया तो ऐसी चीज हो गई है अब कि जिसको सब पास रखना चाहते हैं, लेकिन सब उससे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। हर व्यक्ति इस समय पॉडकास्ट करना चाहता है, हर व्यक्ति वेबिनार करना चाहता है, हर व्यक्ति इंटरव्यू करना चाहता है, हर व्यक्ति अपना शो करना चाहता है, लेकिन मीडिया से उसे बहुत परेशानी है। तो ये एक सोच हो गई है, मुझे इससे कोई वो नहीं है, लेकिन एक सोच हो गई। और एक जो मानसिकता हमारी देश में जो बनाई गई है कि क्रिकेट बाकी खेलों को खा रहा है, मुझे लगता है कि इस मानसिकता से उबरने, मैं क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं और मेरे पास क्रिकेटरों के ऐसे ऐसे किस्से हैं और काले चिट्ठे जिनको कहा जाएगा, जिनको अगर आम जनता सुन ले तो उन्हें क्रिकेट से नफरत भी हो सकती है। लेकिन पत्रकारिता है, उसमें हम कहते हैं जो दिखता है जो वो बिकता है। हम जब प्रिंट में कोई चीज पब्लिश करते हैं तो हो सकता है हमको ना पता चले कि हमारे अखबार में कौन सी खबर किसने कितनी पढ़ी, लेकिन जब वो खबरें ऑनलाइन जाती हैं तो उसके व्यू बता देते हैं कि क्रिकेट की खबर को कौन कितना पढ़ रहा है, हॉकी की खबर को कितना पढ़ रहा है और टेनिस की खबर को कितना पढ़ रहा है या कौन सी न्यूज कितना पढ़ रहा है। ये हमारे सिस्टम का दोष है। हमारे क्रिकेट की जो सबसे बदनसीब खबर होगी वो भी हॉकी की सबसे खुशनसीब खबर से ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा पढ़ी जाएगी। ये प्रॉब्लम ना लिखने वाले की है, ये प्रॉब्लम ना खेलने वाले की है, ये प्रॉब्लम हमारी 150 करोड़ की जनता की है। वो वही देखना चाह रही है, फिर पूरा समाज उसी तरफ से मुड़ जाता है। अब बात आती है हॉकी। हॉकी ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और उसकी उन्हें बहुत अच्छी कवरेज मिली। क्रिकेट क्यों सबसे ज्यादा देश में पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है और सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा वहां पैसे हैं? उसका कारण ये है क्रिकेट ने लगातार बहुत सालों तक भारत में अपना हुकूक जमा के रखा है और वैश्विक स्तर पर अपना हुकूक जमाया है। जब आप वैश्विक स्तर पर हुकूक जमाते हैं और लगातार रोल मॉडल बने रहते हैं तो लोग उसकी तरफ अपने आप प्रेरित होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा किसी गेम, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं होती है, भारत हीरो के प्रति भागता है। भारत हीरो सेंट्रिक देश है, उसको एक हीरो चाहिए, वो उस हीरो के पीछे भागने लगता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो सिनेमा में हो, चाहे वो रेडियो में हो, उसको एक हीरो चाहिए। हीरो कौन होगा? जो परफॉर्मर होगा। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला या सचिन तेंदुलकर अगर देश के जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाना लगा तो वो हीरो थे, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू समय तक वो काम किया। ऐसे ही इंदिरा गांधी थी, ऐसे ही नरेंद्र मोदी थे, ऐसे ही राजीव गांधी थे, ऐसे ही जो भी पॉलिटिकल नेता थे, ऐसे ही दूसरे। आपका एक एग्जाम्पल देखिएगा कि अगर हमारी गली में कोई एक बीटेक करके और उसकी अच्छी नौकरी होती है तो कुछ सालों में पूरी गली बीटेक आ जाती है। हर हर पड़ोसी जो है अपने लड़के को बीटेक करवाने के लिए पूरी तरीके तत्पर हो जाता है। अगर कोई एमबीए कर लेता है और उसका अच्छा हो जाता है तो पूरी गली एमबीए आ जाती है, वो एमबीए की तरफ भागने लगे। देखो बीटीसी, बीएड, ये एक प्रक्रिया है और ये सिर्फ एक गली की सोच नहीं है, ये पूरे भारत की सोच है। आप क्रिकेट में अच्छा पैसा मिलने लगा, आप देखिए जगह जगह एकेडमी खुल गई हैं, लोग क्रिकेट के पीछे भागने लगे हैं। हॉकी ने 2 मेडल, आप जब सानिया मिर्जा ने मेडल जीतना शुरू किया या विंबलडन में डबल्स में अच्छा करना शुरू किया, जब साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में अच्छा करना शुरू किया, जब पी कश्यप और सिंधु ने बैडमिंटन में अच्छा शुरू करने लगे तो बहुत सारे लोग बैडमिंटन की तरफ जाने लगे। जब हमारे नीरज चोपड़ा ने मेडल जीतने लगे तो हरियाणा में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हैं जहां पे भाला फेंक के लिए अप्लाई होने लगा। तो हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे देश की प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हमारे यहाँ विकल्पहीनता बहुत ज्यादा है,
इसके लिए जैसे ही हमको टीवी में हीरो दिखता है, विकल्प दिखते हैं, तो सारा देश उसी विकल्प की तरफ दौड़ने लगता है। हमको किसी को ये नहीं लगता है कि इसके आगे क्या भला होगा, क्या बुरा होगा, वो उसी के पीछे दौड़ते हैं जो उनको दिखाई देता है। अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ध्यानचंद जी आज के समय पे खेल रहे होते, ध्यानचंद जी की हॉकी की टीम आज के समय खेल रही होती, तो पूरा देश हॉकी को फॉलो कर रहा होता। क्रिकेट उसके सामने कहीं भी नहीं होता, क्रिकेट उसके सामने कहीं भी नहीं होता। लेकिन वो दौर था जब वो खेल रहे थे, उस समय पत्रकारिता उतनी वो नहीं थी, उस समय अंग्रेजों का राज था। उसके बाद हॉकी ने धीमे-धीमे मरणासन हो गए और ये मतलब मैं पूरे उससे कहूँगा कि ये ध्यानचंद जी का करिश्मा है कि आज उनको उनके पैदा होने के 100 साल, 120 साल के बाद भी उनको लोग याद कर रहे हैं। ये एक क्रांतिकारी से ज्यादा नहीं है। आप सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए हैं, उसके 100 साल बाद शायद ही कोई सचिन तेंदुलकर को याद करे। आप इस बात को लिख लीजिए, ना हम रहेंगे ना आप रहोगे, लेकिन हमारे बच्चे रहेंगे, बच्चों के बच्चे रहेंगे, 100 साल बाद कोई सचिन तेंदुलकर को याद नहीं रहेगा। हम सचिन तेंदुलकर के समय के प्लेयर हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे और वो कोई सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं लेते, वो विराट कोहली का नाम लेते हैं, वो रोहित शर्मा का नाम लेते हैं। इसके बावजूद अगर 100 साल तक ध्यानचंद जी का अगर नाम लिया जा रहा है, ध्यानचंद जी को अगर याद किया जा रहा है, ध्यानचंद जी के नाम पर अगर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है, अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया जा रहा है, तो ये ध्यानचंद जी की महिमा है। सिर्फ एक भारत रत्न से सिर्फ कुछ उपहार या उनको अवार्ड देकर उनकी गरिमा को ना छोटा किया जा सकता है, ना बड़ा किया जा सकता है। वो इस देश के खेल के सर्वमान्य लीजेंड हैं, सर्वमान्य लीजेंड रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जो ध्यानचंद है, हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, हमारी सरकार को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे आगे और ध्यानचंद बनाएं, कैसे और आगे खिलाड़ी निकालें। उसके पीछे उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि क्रिकेट आप गली मोहल्ले कोने किसी भी कोने में, किसी भी मैदान में कहीं भी खेल सकते हो। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको एक बैट चाहिए, एक बॉल चाहिए, आप जाके खेल लीजिए। हॉकी के साथ सिस्टम क्या है, जब से वो एस्ट्रो टर्फ में खेलना शुरू हुई है, आपको वो टर्फ चाहिए, वो टर्फ बहुत महंगी आती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक आपको मैदान चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक आपको जगह चाहिए, कोच चाहिए, हॉकी चाहिए, बॉल चाहिए और वो नेट चाहिए, जो एक आम खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। और इसीलिए हमारे पास दूसरे ध्यानचंद नहीं निकल रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम दोबारा हॉकी में ओलंपिक में पदक लाएंगे। लेकिन अपनी आंखों से मैंने लास्ट 2 बार में देखा कि ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज आए और इस बार जो हमारी टीम थी वो तो मुझे लग रहा था कि वो स्वर्ण पदक भी जीत सकती है, किन्हीं कारणों से हम कांसे पे अटक कर रह गए। तो हो सकता है कि हमें अगले 4 साल में जब आगे अमेरिका में ओलंपिक होना है, उसके बाद भारत अगर दावा करता है, भारत को ओलंपिक मिलता है, तो हो सकता है कि हम वो स्वर्ण काल भी देखें। और उसके लिए कम से कम इन लोगों ने, चाहे पिया श्रीजेश हो, चाहे हरमनप्रीत हो, चाहे जो बाकी खिलाड़ी हों, उन्होंने एक मंच तैयार किया है। खास तौर से उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया। उन्होंने जो हॉकी की पिछले 5-6 साल से सेवा की है, 7 साल से सेवा की है, जो उन्होंने पैसे खर्च किए, जो उन्होंने पूरी तरीके से स्पॉन्सर किया। नरेंद्र बत्रा जो हॉकी इंडिया के चेयरमैन थे, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत काम किया। एक प्लेयर मुझे कहता था कि नरेंद्र बत्रा के हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले हम लोग आलू और पूड़ी खा के काम चलाते थे, आलू की सब्जी और पूड़ी खा के काम चलाते थे। जब नरेंद्र बत्रा अध्यक्ष बने, जब उड़ीसा गवर्नमेंट ने पैसे देने शुरू किए, तो हमने एवोकाडो, ग्रेप्स के और अच्छे वाले सेब और विदेश का पानी और अच्छे कोच, अच्छे फिजिशियन, इनका उपयोग शुरू किया और आज आपको 2 मेडल वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पहले सेना की टीम जीत जाती थी, जो भारतीय टीम होती थी वो सेना के उसमें लगभग खिलाड़ी होते थे।
वो जीत जाती थी क्योंकि उनकी फिटनेस लेवल होती थी, वो उस तरीके का गेम था। लेकिन अब जो है पिछले 30-40 सालों में वर्ल्ड में किसी भी गेम्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। उस कंपटीशन के कारण आपको उसके लेवल का आना पड़ेगा, उसके लेवल के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार खासतौर से पिछले 8-10 सालों में भारत सरकार ने पैसे कहाँ जाएं, पैसे कहाँ पे सीधे जाने चाहिए, ये सुनिश्चित कर दिया है। प्लेयर्स के अकाउंट में सीधे पैसे जाते हैं, चाहे वो टीए हो, चाहे डीए हो, चाहे विदेशी टूर हो, उनके पैसे उनके पास जाते हैं। कोई लाल फीताशाही नहीं है। अगर आपको पहले क्या होता था कि आपको जो काम 6 महीने में करना है वो साल भर में होता था, तब तक आपका टाइम चला जाता था, क्योंकि खिलाड़ियों का करियर बहुत छोटा होता था। लेकिन अब अगर आपको 15 दिन में कोई चीज चाहिए तो हो सकता है 16 दिन या 17 दिन में आपको मिल जाए। तो सरकार ने भी इस तरीके से चीजों को सॉल्व किया है। ये आगे भी कंटिन्यूअस ऐसे बनी रहे। अब मेन मुद्दा आता है कि हमारे खिलाड़ी जो सुविधा मिल रही है उसका सही उपयोग करके मेडल जीतने में लगाएं। वो गुच्ची और वर्साचे और इनके पर्स और इनके परफ्यूम खरीदने में पैसे मत खर्च करें, और लुई विटॉन के बैग मत मांगे, और इस पर ज्यादा ध्यान दें कि उन्हें जो पैसा मिल रहा है, उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उससे वो मेडल लाने पे आए। 100 ग्राम कम होने की खुशी मत मनाएं। 100 ग्राम कम आप अपनी वजह से हुए हो, अपने कोच की वजह से हुए हो जिन्हें आपने खुद सिलेक्ट किया है, आप अपने फिजियो की वजह से हुए हो, आप अपने पति की वजह से हुए हो जिनको आप लेके गए हो, और आप अपनी वजह से हुए हो क्योंकि आपको पिछले 10 साल से जब से आप खेल रहे हो आपको पता है कि 100 ग्राम कम होगा तो आप नहीं खेल पाओगे। और भारत की जनता और तथाकथित उस समाज को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 100 ग्राम कम होना खुशी मनाने की बात नहीं है, ढोल बजाने की बात नहीं है, नकली गोल्ड मेडल जीतने की बात नहीं है। अगर आप इस तरीके की प्रतिक्रिया दोगे, इस तरीके से अगर आपकी देश की जनता ट्विटर और इंस्टाग्राम में 100 ग्राम कम होने पर विदेशियों को गाली दोगे, आईओसी को गाली दोगे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को गाली दोगे, तो उससे आपका सिर कहीं ऊंचा होने वाला नहीं है। वो आपकी गलती थी। आपने उसको राजनीतिक और पॉलिटिकली बनाकर, इमोशनल आंसू बहाकर और उसको जो है अलग मोड़ पे लिया। उससे असर क्या होगा, कल जो खिलाड़ी जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च होगा, वो जब इस तरीके से चूकेगा, वो कोई एक नया बहाना बना के आएगा और वो जाके इमोशनल ड्रामा करके और जो है जनता की सहानुभूति लेगा। उससे आपकी मेडल टैली नहीं बढ़ेगी, आपकी आंसुओं की टैली बढ़ेगी। इसलिए कृपया करके दिल जीतना बंद कर दें, पदक जीतें जिसके लिए आपको रखा गया है। मेरा काम है आर्टिकल लिखना, मुझे आर्टिकल लिखने के लिए रखा गया है, मुझे किसी का दिल जीतने के लिए नहीं रखा गया है। उसी तरीके खिलाड़ियों का काम है पदक जीतना, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको जो चीज टाइम पे चाहिए, आप पदक जीतिए, आप दिल कतई मत जीतिए। हमें आपके दिल की कोई जरूरत नहीं है, आप पदक जीतिए, भारत को तिरंगा लहराइए, गोल्ड मेडल जीतेंगे, वहां तिरंगा बजेगा, तिरंगा लहराएगा, वहां पे जनगण मन बजेगा, वहां पे तब हमारा जो है दिल अपने आप जीत लेंगे। प्लीज हमारा दिल मत जीते, मत पदक जीते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आपने कुछ सच्चाइयों की ओर जिक्र किया, और ये बिल्कुल सही है कि समय के दौर में हम बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं। आपने तेंदुलकर की बात की, हम लोग गावस्कर की पीढ़ी के हैं उस समय, और उससे भी थोड़ा पहले जाऊं तो मैं अजीत वाडेकर, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, बिशन सिंह बेदी, और जब मैं 35-40 साल की उम्र के लोगों से ये नाम पूछता हूँ, फारूक इंजीनियर, नवाब पटौदी, तो अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। जबकि उस समय ये हमारे दिल जीतने वाले, कथित रूप से दिल जीतने वाले खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनको लेकर के सब पागल थे, है ना। चंद्रशेखर, प्रसन्ना, न जाने कितने लोगों के नाम मुझे याद आ रहे हैं उस समय, लेकिन अब धीरे धीरे हम सब उनको भुला बैठे हैं। तो ये बात सही है कि जो आपने ध्यानचंद जी के लिए कहा कि ऐसे खिलाड़ी शायद युगों में होते हैं, और इसीलिए ये ऐसे चरित्र हैं जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। जहां तक प्रतिस्पर्धा की बात है, तो उस दौर में उस अलग तरह की प्रतिस्पर्धा थी, वो उन्हीं से जूझते थे। आज नई तरह की प्रतिस्पर्धा है, तो हमें अपने आप को उस तरह से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया परिवर्तनशील है।
खेल संघों की राजनीति से लेकर के एक पत्रकार के रूप में किस तरह से हम उस पूरे परिदृश्य को देखते हैं, खिलाड़ियों से क्या अपेक्षाएं हैं और सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन सारे बिंदुओं को छूते हुए आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। हमारे इस ग्रुप में लगभग 70 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। इसके पूर्व के हम उनको अवसर दें अपनी बात कहने का या कोई सवाल पूछने का, मैं एक बार अनुरोध करूंगा पुनः प्रियंका जी से कि वे हमारे आज के अतिथियों को आज के इस आयोजन की स्मृति में ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो ये भेंट करें और उसी के साथ आप आभार प्रदर्शन भी कर दें। उसके बाद सत्र चर्चा के लिए खुला है। प्रियंका जी, आपका माइक ऑफ है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे फिर से मौका दिया कि आज के जो भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, जो भी हमारे प्रोमिनेंट स्पीकर्स हैं, मैं उनको बहुत थैंक्स प्रेजेंट करूं और ये ई मोमेंटो और ई सर्टिफिकेट जो उनके रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड के लिए है, जो नॉलेज उन्होंने हमारे साथ शेयर किया उसके लिए है, ये प्रेजेंट कर सकूं। Ma'am, this is gratitude of respect and honor for our side and from communication today. अभी शो नहीं हो रहा है? सर शो नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा, ओके, आई थॉट कि शो हो रहा है। मुझे लगता है बुके भी शो नहीं हुआ था, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। बुके हो तो गया था क्या? शो नहीं हुआ? क्या ये शो हो रहा है? हाँ, अब हुआ है। अच्छा, ओके, ठीक है सर। Sir, this is a gratitude of respect and honor from our end. ये अभिषेक जी के लिए है। जी सर, बिल्कुल। Sir, this is e-memento and this is a certificate for our side. ये अभी हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे आपको। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। प्रिया, स्मिता जी का। Ma'am, this is for you. सर, आज मैम ने और सर ने जितना नॉलेज हमें शेयर किया है ये उसके हिसाब से कुछ नहीं है, बिकॉज सर इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर ने बहुत ब्लंटली सारी चीजें बताई, एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट हम सबको मतलब एक आईना दिखाने की, और बहुत ब्लंटली अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और किस तरीके से हमें आगे या हमारे स्टूडेंट्स को आगे वर्क करना है वो सारी चीजें बताई। और मैम ने जिस तरीके से एक कहानी के रूप में सर की जर्नी हमारे साथ शेयर की, लिटरली जिन लोगों को उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा वो भी बहुत ज्यादा रूबरू हो गए उनकी जर्नी से, उनके एक्सपीरियंस से। और मैम के एक छोटे से जेस्चर के बाद उन्होंने को ये पता चल चुका होगा कि सर कितने कैलिबर थे, सर में कितनी कैपेबिलिटी थी। और मतलब वी आर ऑल्सो जनरेशन जिसे एक तरीके से पैशनेट होना पड़ेगा अबाउट देयर वर्क, अबाउट देयर टैलेंट। अगर उन्हें पढ़ना नहीं भी है, अगर उन्हें कुछ गेम में भी अच्छा करना है तो दे कैन गो अहेड एंड प्रेजेंट आवर कंट्री एट स्टेट लेवल, एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, बट बी ट्रांसपेरेंट। और जैसे सर ने बताया कि हमें किसी का दिल जीतने की जरूरत नहीं है, हमें अपने काम के लिए अगर हम लॉयल रहेंगे तो अल्टीमेटली वी विल won the hearts of people and we will won the hearts of the viewers, listeners as well as all of them. तो बहुत अच्छे से मैम ने, सर ने ये सारी चीजें हमें बताई और रियली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आपको सुनने का, मैम आपको सुनने का। थैंक यू सो मच। एंड आज मैं आप लोग को सुन पा रही हूँ बिकॉज ऑफ आवर डायरेक्टर BVI camp, Professor M.N. Huda sir, and of course Banawat sir, because without Banawat sir this cannot be possible. So thank you so much sir, and thank you so much our technical team, Jayan sir, thank you so much convener of this webinar, Usha ma'am, thank you so much HOD BVI camp, Ayushi ma'am, and thank you so much participants for being with us. Thank you so much sir for giving me this opportunity to deliver this vote of thanks. चलिए, अब ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। मैं एक नाम देख रहा हूँ यश गोयल जी का, यदि मैं सही पहचान रहा हूँ तो वो डॉक्टर यश गोयल है जयपुर से, जो लंबे समय तक PTI से जुड़े रहे और फिर ट्रिब्यून में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और कई अखबारों में काम किया। यदि वही डॉक्टर यश गोयल जी हैं तो आपसे अनुरोध है कि क्योंकि आपने कमेंट किया है वेरी इंटरेस्टिंग वेबिनार, तो अपनी कुछ बात यदि कह सके तो अच्छा लगेगा। गोयल साहब, गोयल साहब, चलिए वो नहीं जुड़ रहे हैं। तो बहुत सारे मित्रों ने, अच्छा यश गोयल स्टूडेंट है, ठीक है, कंफ्यूजन है मुझे, मैं नाम से कंफ्यूज हो गया था। तो
कुछ मित्रों ने हैंड रेस किया है, तो वो अपनी बात मुझे लगता है डायरेक्ट कहें तो ज्यादा अच्छा है। अपना वीडियो ऑन करें, अपना परिचय दें। Dear participants, if you have any query, you can raise your hand and raise your question and have the answer from our अवनीत जी ने speaker. शायद हैंड रेस किया था। Dr. Avneet ma'am. नहीं कर सर ओके, अगर किसी के पास कुछ सवाल नहीं है तो मैं अपने स्टूडेंट के बिहाफ से क्वेश्चन रेज करना चाहूंगी। हाँ हाँ। सर आपने स्पोर्ट्स फील्ड में वर्क किया है, तो क्या आप एक बार ब्रॉडर टर्म्स में ये बता पाएंगे कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को लेकर हमारे बच्चों के पास कौन कौन से ऐसे स्कोप है जिसके लिए वो वर्क कर सकते हैं? मतलब बिकॉज अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में हम क्या जर्नलिज्म करेंगे, and what else, मतलब apart from the reporting, what else they have as an opportunity in their career? मुझसे पूछ रही? जी सर, बिल्कुल आपसे ही पूछ रही हूँ। देखिए, जब मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म नहीं या ज्वाइन नहीं किया था या मुझे उसके बारे में पता नहीं था, तो मैं भी ऐसे ही सोचता था। और जब मैंने ज्वाइन किया, मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि मेरा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ज्वाइन करने का कोई मन नहीं था। और जब मैंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के फर्स्ट बैच से नोएडा में जर्नलिज्म किया, तो उसके बाद मुझे दिल्ली में जॉब मिल रही थी, तो मेरे एक दोस्त है रजत पांडे, अभी भी हैं, उन्होंने कहा कि इतने कम पैसे में दिल्ली में कैसे जॉब करोगे, कानपुर चलो, कानपुर में अपना घर है और कानपुर में ही ज्वाइन करते हैं। तो दिल्ली छोड़ के कानपुर हम लोग चले गए और कानपुर में 2 महीने तक हम लोगों से सिर्फ ट्रांसलेशन कराया गया, जिससे हम लोग जिंदगी भर डरते रहे। मैं तो खासतौर से 2 चीजों से बहुत डरता था, एक ट्रांसलेशन से और एक मैप भरने से कि वो गंगा नदी कहाँ बहती है और किधर जाती है इधर उधर। तो ये तुक्के मारे हैं जिंदगी भर। और हिंदी जर्नलिज्म भी इसलिए लिया था कि इंग्लिश से पल्ला नहीं पड़ेगा। और जिस दिन फर्स्ट डे ज्वाइन किया तो अजय उपाध्याय जी हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने पहले दिन ही टाइम्स ऑफ इंडिया का सामने रखा और कहा इसका ट्रांसलेशन करना शुरू करो, क्योंकि हिंदी जर्नलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको आगे बढ़ना है ट्रांसलेशन और टाइपिंग। तो मैंने कहा गुरु फंस गए। तो उस 1 साल में हम लोगों ने टाइपिंग वाइपिंग सीख ली, ट्रांसलेशन कर लिया, और जब कानपुर पहुंचे तो 2 महीने तक हमको ईरान में अहमदीनेजाद चुनाव लड़ रहे थे और 2 महीने तक हमसे अहमदीनेजाद के चुनाव का ट्रांसलेशन कराया गया। और ट्रांसलेशन अच्छा था तो हमें और रजत पांडे को जनरल डेस्क दे दी गई। और हमारे एक दोस्त हैं आशीष पांडे, भी TV9 में बहुत अच्छी पोजीशन में है, नंबर 2-3 पोजीशन में है। और आशीष पांडे का ट्रांसलेशन थोड़ा सा कम था तो उन्हें स्पोर्ट डेस्क दे दी गई। लेकिन आशीष पांडे को ऐसा भूत सवार था टीवी जर्नलिज्म का कि उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया और हमें छोड़ के वापस आ गए दिल्ली। तो उनकी जगह मुझको स्पोर्ट्स मिल गया। तो आज भी जब भी वो मिलते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई तुम ना होते तो मैं 20-25 देशों की यात्रा ना कर पाता और 30-40 विदेश यात्रा ना करता। तुम अभी भी नोएडा में फिल्म सिटी में ही घूम रहे हो। तो वो कहता है, तो ऐसे बातें होती है। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आपकी जो ख्वाहिश है वो बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं अगर आप अच्छा काम करो। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग अभिषेक त्रिपाठी बन सकते हैं, और अभिषेक त्रिपाठी बनने में ऐसी कोई मतलब वो बहुत ज्यादा मैंने मेहनत नहीं करी है और मैंने कोई बहुत ज्यादा त्याग नहीं किया है, और ऐसा कोई मेरे पास IIT वाला दिमाग नहीं है। मैं जिंदगी में पढ़ा कम हूँ, कढ़ा ज्यादा हूँ। और अगर आपने जिंदगी को ढंग से समझ लिया और ये समझ लिया कि कैसे जर्नलिज्म करना है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ही नहीं, कोई भी जर्नलिज्म आपको कैसे करना है, क्या महत्वपूर्ण है। अजय उपाध्याय जी जो हमारे डायरेक्टर थे वो कहते थे कि पूरा अखबार पढ़ने की जगह वो खबरें पढ़ो जिनका तुम्हारी जिंदगी में आज के बाद भी महत्व रहे। तो जरूरी नहीं है कि आप 2 मरे 3 घायल पढ़ो ही पढ़ो, अगर वो आपके मोहल्ले से या आपके आसपास से रिलेटेड नहीं है। आप वो चीजें पढ़ो जो आगे भी महत्वपूर्ण हो, क्योंकि ये ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक की जो दुनिया है, इसने आपको
बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं किया, आपको कमजोर बना दिया है। आप सिर्फ वही पढ़ना चाहते हो जो आप पढ़ते हो। जब आप अखबार पढ़ते हो तो आप वो भी पढ़ते हो जो आप नहीं पढ़ना चाहते हो, या जिसकी आपको समझ नहीं है, या जिसकी आपको अपेक्षा नहीं है। लेकिन ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक और इसमें जो, या सोशल मीडिया में, जिसे हम लोग इंटरनेट मीडिया कहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में सोशल कुछ नहीं है अब। तो जो इंटरनेट मीडिया में आप पहले किसी पे क्लिक करते हो, फिर वो एल्गोरिदम में वही आपके सामने आता जाता है और आप उसी को पढ़ते जाते हो, और खुद को जो है सुई 1008 से कम समझते नहीं हो। तो एक तो वो है। प्लस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाकी जर्नलिज्म से थोड़ा सा हटकर है। क्राइम में जाओगे आप, या आप जो लोकल बीट करोगे या पॉलिटिकल बीट करोगे, तो आपको सिर्फ लड्डू खाने को मिलेंगे, कभी कभी रसगुल्ले मिल सकते हैं, कभी आप किसी कांग्रेस के मुख्यालय जा सकते हो, भाजपा के मुख्यालय जा सकते हो, 2-4 डीजीपी डीजी से मिल सकते हो अगर आप क्राइम कवर कर रहे हो। दिल्ली में आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कवर कर रहे हो तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 स्टार या 7 स्टार में होती है। एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि आपको अच्छे लोगों से मिलना होता है। तीसरा फायदा ये है कि आपको खेल देखने के पैसे मिलते हैं। चौथा फायदा ये है कि अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं तो आपको टूर मिलते हैं, क्योंकि आप मैच कवर करने जाते हो। आप अगर हॉकी को कवर करते हो तो आप हॉकी की टीम के साथ जाते हो। आप अगर खो खो कवर करते हो तो खो खो की टीम के साथ जाते हो। आप अगर क्रिकेट कवर करते हो तो क्रिकेट की टीम के साथ जाते हो। जैसे जैसे आपका अनुभव होता है, आपकी लिखावट अच्छी होती है, तो या आपका बोलने का तरीका अच्छा होता है, तो आपको आपका ऑफिस भेजता है। आप विदेश टूर करते हो, आप वर्ल्ड कप कवर करने जाते हो, आपको जंकेट आते हैं, आप बड़े बड़े प्लेयर से मिलते हो जिनसे लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं, आप उनके साथ मिलते हो। और अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप उनके साथ फोटो नहीं खिंचाते हो, वो आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, वो आपसे सलाह लेते हैं। मैं ऐसे 10 जर्नलिस्ट को जानता हूँ जिससे बीसीसीआई के सचिव, अध्यक्ष, ट्रेजरर, टीम के कप्तान, टीम के कोच सलाह लेते हैं। और ऐसे भी 10 जर्नलिस्टों को जानता हूँ जो लाइन लगा के फोटो खिंचाने के लिए खड़े रहते हैं। तो ये आपको तय करना है आपको कैसा बनना है, और मुझे लगता है कि आपको वो पहले वाला बनना चाहिए। और वो तब तय होगा जब आप जिसके सामने खड़े हो वो ये सोचेगा कि ये मुझसे कुछ ले नहीं रहा है, मुझे कुछ दे के जा रहा है। जब उसको लगेगा कि इसके पास कम से कम इतना ज्ञान है कि ये मुझे कुछ दे सकता है, या इसके साथ बैठने में मजा आएगा, इससे बात करने में मजा आएगा, इसके सोर्स अच्छे हैं, ये कुछ मुझे अंदर की नॉलेज बताएगा, तब वो आपको भाव देगा, तब वो आपसे मिलेगा, तब वो आपको 2 खबर देगा, तब वो उसके जरिए आपको दूसरे लोग मिलेंगे, दूसरे से तीसरे मिलेंगे, फिर आपका सर्किल बनेगा, आपके सोर्स होंगे, आप अच्छा लिखना सीख जाओगे, अच्छा लिखोगे, लोग पहचानेंगे। बनावट जी आपको अपने वेबिनार में बुलाएंगे और यहाँ पे भी 70 लोग आपको जान जाएंगे। फिर वो 70 से 700 होंगे, 700 से 7000 होंगे, और उसके बाद आपकी निकल पड़ेगी। चलिए, हाँ अवनीत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार सभी को और आदर प्रणाम हमारी गुरु माँ स्मिता मैम, मिश्रा मैम। 2004 से क्लास का पहला दिन खालसा कॉलेज में, और डॉक्टर मुकेश ने बोला अवनीत कुछ बनना चाहती हो तो स्मिता मिश्र का पल्लू पकड़ लो। तो आज धन्यवाद सबके सामने कहने का मौका मिला है, और मैम से बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं सर रामदर्श मिश्र जी की शताब्दी के लिए, उनके लिए। और जब ऐसे गुरु हो तो शिष्य डॉक्टर अवनीत कौर भाटिया जैसे जरूर बन सकते हैं। और जब ऐसे गुरु हो हर मार्गदर्शन करने के लिए हो, सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात ना करके। और जब मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की दूरदर्शन में तो मैम कमेंट्री करने और स्पेशल गेस्ट वहां पे आती थी, और मैम मुझे बोला भी करती थी कि बच्ची क्या सिखाया और कहाँ पहुंच जाती हो क्राइम सीन्स पे और यहाँ मॉर्जरी पे। लेकिन आज मैं यही सबके सामने कहना चाहती हूँ,
मैम आज मैं जो भी हूँ आपके करके हूँ, पत्रकारिता में हूँ, आप मेरी गुरु माँ हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत प्यार बेटा। और मुझे याद है कि जब ये क्राइम रिपोर्टिंग इसने अपना स्पेशलाइजेशन चुना तो हम लोगों के लिए विभाग के लिए कॉलेज के लिए गर्व का विषय था कि एक लड़की जो है वो क्राइम रिपोर्टिंग में जा रही है। और अवनीत जिस तरह से बोल्ड स्टैंड लेने के लिए जानी जाती रही, मुझे प्रसन्नता इस बात की है उसने बहुत कायदे से, बहुत निर्भीकता से, निडरता से न केवल इसने अपना काम किया बल्कि ये अनेक बच्चियों के लिए, अनेक पीढ़ी के लिए ये आदर्श बनी। और मुझे खुशी हो रही है कि अवनीत, डॉक्टर अवनीत कौर भाटिया के रूप में मैं अब इसे सुन पा रही हूँ। मैं एक प्रश्न प्रियंका ने जो पूछा था मैं उससे बात करना चाहूंगी। जी मैम, क्योंकि बिल्कुल। हमारे, हाँ जी, हमारे कॉलेज में क्योंकि स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग कोर्स चलता है, एड ऑन कोर्सेज है। इसमें जैसे आपने पूछा था बच्चों के लिए एक व्यवहारिक पक्ष तो अभिषेक जी ने बहुत कायदे से दे दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जरूर बताना चाहूंगी कि वो करियर के तौर पे जैसे हमारे यहाँ आप स्पोर्ट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग जॉनर से आते हैं। यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आपका हिस्सा होता है, स्पोर्ट्स कंटेंट राइटिंग होता है, इसमें स्पोर्ट्स एड के साथ आप जानते जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें ऐसे आते हैं जो इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, वो इसके न्यूएंसेस लेते हैं और अपनी फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स जो है उन्होंने स्पोर्ट्स लॉ किया आगे, और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड में चले गई और वहां से उन्होंने स्पोर्ट्स में ही एलएलएम किया है। और वह स्पोर्ट्स क्या है, सारा जो नेगोशिएशंस, सारी जो लीग सिस्टम के होते हैं वो शीज उसको देख रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि स्पोर्ट्स कुछ मैथमेटिक्स और स्टैट बैकग्राउंड के आते हैं, जो बिग डाटा मैनेजमेंट और इस तरह के जो काम जो होते हैं वो उस फील्ड में जाते हैं, जो मैथमेटिक्स के आते हैं। और स्पोर्ट्स लॉ, स्पोर्ट्स एजेंट और स्पोर्ट्स पीआर आजकल सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड अगर फाइनेंस और उसका है तो स्पोर्ट्स एजेंट वगैरह जो है वो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। स्पोर्ट्स मर्केंडाइजिंग जो है वो एक फील्ड आपका आ जाता है। स्पोर्ट्स साइकेट्री जो है, साइकोलॉजी है, वो एक बड़ी आजकल एक उसकी डिमांड आती है। तो स्पोर्ट्स कंटेंट से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर एरिया में स्पोर्ट्स की, क्योंकि स्पोर्ट्स आज केवल खेल नहीं है ना, स्पोर्ट्स पूरा एक उसका एक इकोनॉमिक्स है, उसका पूरा एक अर्थशास्त्र है, जिसमें हर जगह आपको आप उसको बिजनेस आईएम जो है वो स्पोर्ट्स एमबीए जो है वो उसमें उसके स्पेशल मॉड्यूल्स कराता है। मेरे कई स्टूडेंट्स ने आईआईएम बैंगलोर से उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किया और इस समय वो साई के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लीग सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो या कुछ आईपीएल की जो डिफरेंट टीम्स है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का अपना जो बेसिक इंटरेस्ट है, अगर उसके पास लिखने की क्षमता है तो स्पोर्ट्स कंटेंट की इस समय बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। सोशल मीडिया हैंडलिंग, तो स्पोर्ट्स की आज हर एक प्लेयर की अपना सोशल मीडिया एक हैंडलर होता है, स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, हर एक चीज का होता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे के सामने सारे वो जगह हैं, सारे वो ऑप्शंस हैं, वो केवल उसको ये देखना है कि वो कहाँ खड़ा हुआ है, उसके जो गुरुजन है, उसके टीचर है, वो उसको पहचाने कि इसके पास क्षमता कौन सी है, बोलने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, कैमरे के आगे की क्षमता है, कैमरे के पीछे की क्षमता है, साइंटिफिक है, कैलकुलेशंस है, व्हाट एवर इट इज। तो मुझे लगता है कि बच्चों के पास बहुत बहुत एक ऑप्शंस हैं, बजाय कि वह एक रेगुलर जो ट्रेडिशनल जो जर्नलिज्म आता रहा है उसके पीछे ना रहे कि बस टीवी के सामने चेहरा ही दिखना चाहिए। आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको वो टेकअप कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच मैम। आई गेस आपके आंसर के बाद बच्चों को और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी अबाउट दिस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और स्कोप फॉर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, मुझे लगता है कि अब
इसी के साथ अपन समापन भी करें, समय काफी हो गया है। मैं भी कम्युनिकेशन टुडे की ओर से हमारे आज के दोनों स्पीकर्स प्रोफेसर स्मिता मिश्रा और अभिषेक जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। और जैसा शुरू में प्रोफेसर हुडा जी ने बताया था कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, हम सारे जो हमारे डेलिब्रेशंस हैं, विचार विमर्श है, उसको उस पर अपलोड करते हैं। तो आपसे अनुरोध है, लिंक हमने चैट बॉक्स में डाला है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो अभियान हमने चलाया है मीडिया संबंधी मुद्दों के ऊपर एक जागरूकता के लिए, उस मुहिम में, उस अभियान में आप लोग भी शामिल हो सके। लगभग 1500 के आसपास का परिवार हमारा हो गया है। इसी तरह से हमारे कम्युनिकेशन टुडे के अपडेट्स के लिए जो हमारा ग्रुप है, उसमें भी 700 के ऊपर करीब मित्र ज्वाइन कर चुके हैं। तो उसके माध्यम से भी आपको नियमित रूप से अपडेट मिलते रहेंगे। आगे के हमारे जो भी आयोजन होंगे उसकी जानकारी आपको इन्हीं ग्रुप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मिलती रहेगी। बहुत